Hi, so we are going to discuss leukemia in this video. It's 3 hours to midnight. Everybody is sleepy and it is cold, but we have to study. And some of you have your exams also. So I'm going to brief leukemias as simply as possible. The four entities that MBBS kids have to be concerned with: AML, ALL, CLL, and CML, right? You will encounter them in theory, you will encounter them in your spotters, in your practicals as well. You will encounter them in vivas as well, right? These are important topics. Now, the word leukemia is derived from two things, right? Leuke means something pertaining to WBCs. We have 5 types of WBCs. And emia means something pertaining to blood. So basically, it is your neoplastic proliferation of WBCs. So it's a group of malignant disorders affecting blood and bone marrow forming tissues, bone, blood forming tissues, which is bone marrow, lymph node, and spleen. So basically, it involves blood and your bone marrow, right? And can present as lymphadenopathy, so that's why lymphoid system is involved, and it can present as splenomegaly as well. CML classically presents as splenomegaly, right? Now we are going to discuss them one by one. I will try to make them as simple as possible. Okay, let's go. I put pictures here, but they're not appearing. So what do you mean by I put a shorts video about what is the meaning of acute leukemias? It means neoplasms with more than 20% blast, whether on your peripheral blood smear or whether in your bone marrow smear. So neoplasms with more than 20% blast. So there's a patient whose TLC is increased and we did DLC, and on DLC more than 20% blast were seen. So you know how we do DLC ki percentage we give neutrophil, lymphocyte, eosinomonophil, and basophils. So we give a percentage of the normal cells. So whenever there are abnormal cells, that also we have to include in the DSC because it's a part of the total leukocyte count. So in that percentage, there should never be any blast. I mean, of course, a newborn baby can have some blast, but more than 20% blast is a bit too much. Okay, so especially in adults or other age groups, even toddlers or someone. So you know that more than 20% blast means acute leukemia. That is what it is. That is that percentage is very important for you to remember. Okay. So okay. So this is a normal blood picture. So on a normal blood picture, you might see two or three WBCs, right? But in a leukemic blood picture, you will see so many WBCs, right? You do have RBCs and platelets and other cells in this picture, but these cells are way too many, right? So that is why this is a normal blood picture and this is the leukemic blood picture. So whenever you are given a spotter, I hope you can now identify at least that this is not a normal slide or it is a normal slide. Okay. Now we know now acute leukemias mean more than 20% blast morphologically, and it's a simple thing that you have to remember, right? More than excuse me, more than 20%. Now, upon the lineage, based on their lineage, you can have two types: acute myeloid leukemias and acute lymphoblastic leukemias. Now, whenever AML is encountered, because TLC is increased, which is, of course, we call it leukocytosis, sometimes, whenever they centrifuge this, they can see a prominent buffy coat because of the increased WBC count. So, if this is a normal blood, this is the blood of a leukemic patient, and you can see this buffy coat is formed, okay, because of the leukemic blast. This is the liver, which is showing some tiny these tiny nodules in case of a high blast count. Now let's see hematopoiesis. Although I have added basic videos wali playlist mein hematopoiesis, so if you want to go there, you can see more in detail there. But again, revising this, we have a hematopoietic stem cell which can have a lymphoid progenitor, and we have a myeloid progenitor. From myeloid progenitor, we get every type of cells except lymphocytes. So we get the RBCs, we get the platelets, and the 4 type of WBCs. From the lymphoid progenitors, we get the B lymphocytes and T lymphocyte. And we know that B lymphocytes form plasma cells, which become memory cells when they after they produce antibodies.
So from the lymphoid progenitors, you will get the ALL, and from the myeloid progenitors, you will get the AML. Now, AML, acute myeloid leukemia. So इसमें जो blast बढ़ रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं myeloblast. It is a larger blast as compared to lymphoblast. It is a large blast with a moderate amount of granular, पीछे ये जो granules दिख रहे हैं, cytoplasm, fine lacy chromatin, prominent nuclei, and or rods may be seen. So main two things that you have to remember is what is happening to the cytoplasm. It is the cytoplasm is a lot, like a moderate amount of cytoplasm is present. Second thing you have to remember is or rods. These are seen in myeloblast, and it is a large blast. The size of the blast is pretty decent, and you have nuclei. The size of the blast is pretty large. Cytoplasm काफी ज़्यादा moderate amount और rods हैं और साथ में nuclei भी हैं. But lymphoblast in contrast is a small blast. It doesn't have a lot of cytoplasm. It actually has scant cytoplasm. You see, scanty cytoplasm it has, right? As compared to इसका cytoplasm, myeloblaст का कितना ज़्यादा cytoplasm है, पर यहाँ पे जो cytoplasm है बहुत कम है lymphoblast में. There are no or rods or granules. उसके cytoplasm में granules भी थी, उसके cytoplasm में or rods भी थी. इसके nuclei indistinct होते हैं और dense chromatin होता है, but usually not always indistinct. They might have one or two nuclei. Okay. स्पेशल स्टेन्स होती हैं साइटोकेमिस्ट्री पे, उस पे भी आप एएमएल और एएलएल को डिस्टिंग्विश कर पाते हो, बट फॉर द मॉडर्न डे पर्पसेस इट इज फ्लो साइटोमेट्री, इम्यूनोफिनोटाइपिंग, विच विल टेल यू कि हमारे पेशेंट को कौन सा वाला एएमएल है या एएलएल है, क्योंकि इनकी फर्दर भी अब सब क्लासिफिकेशन है और अब तो जेनेटिक लेवल की क्लासिफिकेशन है. सो साइटोकेमिस्ट्री इज क्वाइट ओल्ड, बट यू स्टिल हैव टू रिमेंबर कि माइलोपेरोक्सिडोसिस के तो नाम में ही माइलो है, तो ये माइलॉइड ब्लास्ट में आती है. सुडान ब्लैक ब्ली और एनएसी, न्यूरॉन स्पेसिफिक किनोलेज, ये सारी माइलॉइड ब्लास्ट में आती हैं. बट एसिड फॉस्फेटेज है वो लिम्फॉइड ब्लास्ट में आती है, और वो भी टी सेल ल्यूकीमिया वाला जो एएलएल है उसमें. और पास पॉजिटिविटी जोनी में आती है, बट M6 और माइलॉइड ब्लास्ट में फाइन पॉजिटिविटी होती है. M6 और M7 के ब्लास्ट में वी विल लर्न अबाउट दिस क्लासिफिकेशन सून. और एएलएल में ब्लॉक पॉजिटिविटी होती है इसकी. Now we are coming to AML first. We are discussing AML. In this video, I'm only going to discuss AML. Okay, I'll make a separate video of the other ones. AML. AML accounts for 80 to 90% of cases of the acute leukemia in adults. So most of the time, it occurs in adults only. That is what your book also say. But of course, higher level की जब आप books पे जाते हो तो see कि कुछ cases AML के बच्चों में भी हो सकते हैं, और even adolescents में भी हो रहे हैं, 10 to 15 years की age पे भी हो जाते हैं. But all for all intents and purposes, you guys have to remember AML adults में होता है. ठीक है, ये देखो different age की distribution दी हुई है, but you have to remember कि adults में. अब etiology almost सारे leukemias की same है, AML की, ALL की, CLL की, CML की, चारों leukemias जो you जिसको remember रखने हैं उनमें etiology almost same है. Ionizing radiation, which is X-rays, CTs, etc. Benzene, cigarette smoking, chemotherapy, radiotherapy, myelodysplastic syndromes, congenital disorder like Down, Turner, Fanconi और Black Fan Diamond syndrome. इन syndromes में leukemias का risk बढ़ जाता है. ये यूजी का टॉपिक है, पर ये नीट पीजी के क्वेश्चन में आता है. ये डाउन सिंड्रोम में कौन से ल्यूकीमिया का रिस्क बढ़ जाता है, या फिर कौन सा ल्यूकीमिया किसी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, तो ये रिमेंबर. नाउ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. हमारे पास जो जो तरह के हमारे सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट हैं, उसके हिसाब से हमारे सिम्टम आएंगे. ठीक है, 3 तरह के हमारे पास सेल्स हैं. एक्सक्यूज माय राइटिंग. ओके, I'm not well versed with this. RBC, WBC और प्लेटलेट, राइट. अब हमारा ये एक्यूट ल्यूकीमिया का पेशेंट है, यानी कि WBC काउंट तो बढ़ा हुआ है. ठीक है, पर ये तो अब नॉर्मल वाले WBC बढ़े हैं, ब्लास्ट बढ़े हुए हैं, न्यूट्रोफिल तो नहीं बढ़े. ब्लास्ट, फिर प्रोमाइलोसाइट, मेटामाइलो, माइलो, बैंड फॉर्म, फिर न्यूट्रोफिल आके बनता है. तो ब्लास्ट काउंट बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल तो नहीं है. तो न्यूट्रोफिल अगर नहीं है तो आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क है. अब ब्लास्ट ने बोन मैरो को भरा हुआ है और ब्लास्ट ब्लड में भी आ रहे हैं. आरबीसीज के और प्लेटलेट के तो बनने के लिए जगह ही नहीं बची बोन मैरो और ब्लड में.
ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा एच भी कम होगा, तो अनीमिया होगा। प्लेटलेट के लिए भी जगह नहीं बची तो ब्लीडिंग डायथिसिस होगा। क्लासिक जो एक्सक्यूज मी, जो तुम लोग को याद रखना है वो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में डीआईसी होता है, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोagulation या कंजम्पटिव कोagulopathy जिसे बोलते हैं। इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि लेट्स से हमारे पास किसी पेशेंट की स्मीयर आया कि टीएलसी बढ़ी हुई है, आपने देखा कौन सा वाला ल्यूकीमिया लग रहा है, माइलॉइड ल्यूकीमिया लग रहा है, ब्लास्ट लग रहे हैं, कौन से वाले एपीएमएल लग रहा है, इस पेशेंट की प्रेजेंटेशन ब्लीडिंग की हुई होगी। इमीडिएटली अगर आपने जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग कर दिया, इसकी ट्रीटमेंट इजी है, पूरा देना होता है पेशेंट को, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड या इवन स्कॉर्बिक एसिड भी देते हैं, बट मोस्टली एट्रा देना होता है पेशेंट को, तो इस पेशेंट की ट्रीटमेंट इजीली हो जाती है। दैट इज वाई एपीएमएल को डायग्नोस करना बहुत जरूरी है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ब्लीडिंग डेथ से पेशेंट की डेथ हो सकती है। फिर बोन मैरो एक्सपेंशन, क्योंकि बोन मैरो में है इन जगह जहां सेल भर भरे हैं, तो इसलिए बोन मैरो, बोन पेन एंड टेंडरनेस है जब बोन एक्सपैंड कर रही है अननेचुरली। जिस जिस ऑर्गन में जाएंगे, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली, स्किन में ल्यूकीमिया हॉट क्यूटिस, गम हाइपोप्लेजिया या फिर सीएनएस मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं। ये सब ज्यादा कॉमन है विद एएन एएलएल एंड एएमएल। अब आता है ल्यूकीमिया क्यूटिस का मतलब क्या है, कि स्किन स्किन में ये देख लो, स्किन की इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, स्किन में ब्लास्ट चलेगी, पेप्यूल नड्यूल मैक्यूल वगैरह। फिर है जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, माइलॉइड ल्यूकीमियास में ये ज्यादा कॉमन होता है, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, ट्रीटमेंट के साथ से ये ठीक हो जाता है। Fitzsimmons syndrome होता है, acute febrile neutrophilic dermatosis, just remember the name. लैब फाइंडिंग्स एक तो होती है आपकी पीबीएस की और बोन मैरो की फाइंडिंग्स, एक तो वो है हिमैट रिलेटेड फाइंडिंग, फिर बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड ये तो आपकी हिमैट रिलेटेड फाइंडिंग है, ठीक है, पैथो रिलेटेड फाइंडिंग। फिर बायोकेम रिलेटेड भी फाइंडिंग है, बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट है, एलडीएच, लाइसोजाइम, डीआईसी है तो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, ट्यूमर लाइसिस और हाइपरल्यूकोसाइटोसिस, वो तुम्हें बताइए, ठीक है। अब एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के लिए तुम्हें माइलॉइड मैच्योरेशन पता होनी चाहिए, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, माइलोब्लास्ट, पुमाइलो, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म और न्यूट्रोफिल। ये ब्लास्ट हमने डिस्कस किया, कितना बड़ा सेल है, इसमें न्यूक्लियोलाई मिलते हैं और रॉड्स वगैरह भी मिलती हैं। इन सब में से सबसे लार्जेस्ट प्रोमाइलो होता है, तो प्रोमाइलो में भर भर के ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, बहुत ज्यादा कोर्स मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। फिर आपका आता है माइलोसाइट और फिर मेटामाइलो। जो मेटामाइलो है उसमें वी शेप इंडेंटेशन होती है या फिर किडनी बीन की शेप, ये तुम्हें पता चल ही होगा, किडनी बीन का शेप का है ये। फिर बैंड फॉर्म है जिसमें ऐसे टू लोब्स, जो न्यूट्रोफिल्स की टू लोब्स जो बनने वाली थी वो कनेक्टेड है, तो ये बैंड फॉर्म होता है। और फिर जब लोब्स प्रॉपर बन जाती तो नो न्यूट्रोफिल बन गया हमारा। सिमिलरली एसिनोफिलम, मोनोसिट और बेसोफिल की भी ऐसे ही मेच्योरेशन हो रही है अपने अपने माइलोब्लास्ट से। अब फैब क्लासिक दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन फैब वाली और डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन। और डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन भी आजकल दो तरह की है, विच इज एक तो मोर्फोलॉजी के बेसिस पे कि ब्लास्ट दिखता कहता है मोर्फोलॉजी वाला, और एक जेनेटिक रेकरेंट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के बेसिस पे, ठीक है। अब फैब क्लासिफिकेशन मोर्फोलॉजिकली ये ऑलमोस्ट एम नॉट है, मिनिमली डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटेड, और फिर मेच्योरेशन आ गई, M1 और M2 आर कंसर्न विद मेच्योरेशन विदाउट और विद। फिर जैसे जैसे ब्लास्ट वैसे वैसे ब्लास्ट के बाद प्रोमाइलो आया था तो M3 हो गया, माइलो मोनो आया था M4 हो गया, मोनोब्लास्टिक मोनोसिटिक M5, M6 एरिथ्रॉइड और M7 मेगाकेरोसाइट, क्योंकि वो वाले सेल भी तो आरबीसीज और प्लेटलेट्स भी तो माइलॉइड प्रिकर्सर से ही तो बन रहे हैं। डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन रेकरेंट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, अब तो 2021 या 2 में उसके बाद अपडेट एक और आया था, उसमें रेकरेंट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज वाली को काफी रिकॉग्नाइज किया गया, माइलोडिस्प्लेजिया रिलेटेड, थेरेपी रिलेटेड, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। माइलॉइड सार्कोमा है कि ईएमएल या मतलब कोई भी ब्लास्ट वाली कंडीशन, कोई ल्यूकीमिया कंडीशन आई है, बट इट इज इन अ सॉलिड ऑर्गन, ब्लड या बोन मैरो में नहीं, ये किसी सॉलिड ऑर्गन में होता है तो उसे माइलॉइड सार्कोमा होता है। फिर रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम भी होता है। ये तो वही वाली आ गई आपकी। और फिर ये रेकरेंट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, KAT1 रन एक्स। अब जो तुम लोग को याद रखनी है, आई एम कंसिडरिंग दिस फ्रॉम दी MBBS किड्स पर्सपेक्टिव, पीजीज को तो ये सारी याद रखनी है, रन एक्स वन P1, CB FEM H1 PML रहा,
जो यूजीज को याद रखनी है वो है रखनी 15+17। ये आपकी रॉबिन्स में भी दी हुई है, ट्रांसलोकेशन 15-17 PML रारा प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया की। फिर 9-11 की केएमटी अरेंजमेंट, 6-9 की डेक्नुप, इन्वर्जन 3 गाटा 2 मिकैम, बी सेराबल्सन भी होता है, आरबीएम 15 म्यूटेटेड एनपीएम एंड म्यूटेटेड सेप्टा। ये पीजीज को याद रखनी है सारी, बट यूजीज को जो याद रखनी है वो है 15-17, 15-17 की पीएमएल रारा की ट्रांसलोकेशन। अब कुछ फेवरेबल भी हैं, जो 821 है और पीएमएल रारा है और इन्वर्जन 16 है वो फेवरेबल है। बाकी 9-11 इन्वर्जन 3 या 6-9 या जो भी है ये वाली, ये एडवर्स प्रोग्नोसिस के साथ एसोसिएटेड है। इन जनरल अगर एज पेशेंट की मिडिल एज है तो काइंड ऑफ फेवरेबल है, अगर एक्सट्रीम एज हो गई तो अनफेवरेबल। अगर पेशेंट को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम था, उसकी सेटिंग में ल्यूकीमिया हुआ है, हमने पढ़ा ना माइलो, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था माइलोडिस्प्लेसिया रिलेटेड एएमएल, उसकी सेटिंग वाला अनफेवरेबल है। पर अगर डी ने वो हुआ है पेशेंट को कोई हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी नहीं थी तो वो फेवरेबल है। ल्यूकोसाइट काउंट अगर 10 लेस देन 25,000 है वो फेवरेबल है, पर बहुत ज्यादा काउंट है तो मोर देन 1 लाख जैसे वो अनफेवरेबल है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत लाखों में एएमएल वाले पेशेंट आएंगे, कभी कभी 10-12 हज़ार का पेशेंट भी होता है, पर उसमें बहुत मिल जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा मेडुलर डिजीज है या सीएनएस है तो ऑफकोर्स प्रोग्नोसिस वर्स होगा, और सीएनएम एलडीएच ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते तो प्रोग्नोसिस वर्स ही होगा ना। और रॉड्स अगर मिल रही हैं तो फेवरेबल प्रोग्नोसिस है, ईओसिनोफिल मिल रहे हैं तो ठीक है। डिस्प्लास्टिक वाले मेगाक्यूरोसाइट या मेगालोब्लास्टिक एरिथ्रॉइड मिल रहे हैं तो वो अनफेवरेबल है। क्योंकि जब भी हम बोन मैरो की रिपोर्ट करते हैं ना, जैसे पीबीएस की रिपोर्ट में हम 3 चीजें बताते हैं, आरबीसी की क्या हालत है, बड़े हैं कम हैं कैसे हैं, डब्ल्यूबीसी की हालत है बड़े हैं कम हैं कैसे हैं, सिमिलरली प्लेटलेट का। बोन मैरो में भी आपको बताना है कि एरिथ्रॉइड यानी कि आरबीसी प्रिकॉर्सर का क्या हाल है, और ये जो आपके माइलॉइड प्रिकॉर्सर्स हैं उनका क्या हाल है, लिम्फोसाइट्स का क्या हाल है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी वाले सब पांचों के पांचों को इंक्लूड करना है, और आपके मेगा केरोसाइट का क्या हाल है तो वो भी बताना है। अगर डिस्प्लास्टिक हो गए मेगा केरोसाइट या मेगेलोब्लास्टिक जो एरिथ्रॉइड है, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो अगर वो भी अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस का साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ डब्ल्यूबीसी की लीनिएज खराब नहीं है, प्लेटलेट की लीनिएज और डब्ल्यू आरबीसी की लीनिएज में भी कुछ प्रॉब्लम है। M2 M3 M4 का अच्छा प्रोग्नोसिस है। बाकी HLA-DR और TDT और MDR का बुरा प्रोग्नोसिस, CD34 अगर पॉजिटिव है तो prognosis है। ये हमने पढ़ी लिया ऑलरेडी। So that was all about AML, and next topic that I will be covering is ALL, but for now this is all. I hope you understood this topic well enough. AML की बहुत सारी क्लासिफिकेशन WHO वाली जो है रेकरेंट जेनेटिक वाली, उनमें 15-17 याद रखना, और माइलोब्लास्ट दिखते हैं, ब्लास्ट कैसा दिखता है, माइलोब्लास्ट कैसा दिखता है वो याद रखना। जो पीजीज है उन्हें सारा याद रखना होगा, M1 M2 M3 M4 M5 6 7 क्या क्या मिल रहा है पीजीज को, वो सारा याद रखना होगा। So all the very best for your exams. I will try to keep making videos every day. Thank you.